Today we're going to talk about what a woman needs to do for love. A lot of you, hear me talk about that. When it comes to love, women do not need to do a lot of things because women are the ones which will be courted. They do not do courtship. Maximum they have to do is just be open to courtship. But today I want to make you guys understand that in detail. Like, what do I mean by that? Being open for courtship, right? Remember in some earlier video I talked about that if it's a masculine guy, all you need to do is be a woman and be alive. He doesn't need anything more than that. He will work his way around because he wants you. That's it. It's done. So nothing else is required for this love to flourish. Okay. So now let's get in detail. What do I mean by that? That you have to be a woman and then you have to be alive. I think alive part is clear. आपको जिंदा होना है. Right. I think that is clear. But what do I mean when I say you have to be a woman? Right. Okay. So I'm gonna imagine the worst case scenario and then build it from there. Okay. So if you are a female which had very traumatic childhood, right? आपका बहुत ही बुरा चाइल्डहुड रहा, आपने अपने पापा को देखा ग्रोइंग अप, जो मम्मी का ध्यान नहीं रखते थे, मम्मी उस घर में एक तरीके से घुट घुट कर जी है और वो इस लेवल पे ब्रेन वॉश्ड है कि वो इसी को ज़िंदगी समझती है और तुम्हें भी यही बताती है कि आगे जाके यही होता है, सास ससुर का ध्यान रखना होता है, हस्बैंड तो सबको ऐसे ही मिलते बेटा, लड़के तो ऐसे ही होते हैं. So that's when this woman is someone you cannot hear when it comes to love. Because इनको सुनोगे तो इन्हीं के जैसे आपकी ज़िंदगी रहेगी and that is something you do not want, right? We want something better. So इस केस में सबसे पहले आपको अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा पे काम करना होगा to come into your womanhood. Okay, you need to find a therapist and which can help you release all this trauma that you have gotten as a woman from your childhood. Usually इन घरों में औरतों को ढंग से ट्रीट नहीं किया जाता है, औरतों को प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं मिलता है क्योंकि मम्मी जो घर का पूरा सब कुछ चला रही है उसको बेचारी को जब नहीं मिलता है तो आप तो क्या ही चीज़ हो. आपको यूजुअली घर के हाउस होल्ड चोर्स में लगा दिया जाता है और बोल दिया जाता है लड़की है इसके ज़्यादा दिमाग नहीं होगा, लड़की है बिम्बो है तभी इसको पिंक पसंद है, राइट? पूरी ये लगभग 20-30 साल की बेइज्जती आप सह के इस घर में आप अपने वुमेनहुड से बहुत अच्छा खासा डिस्कनेक्ट हो चुके होते हो बाय दिस टाइम, राइट? सो दैट पॉइंट व्हेन आई सेड बीइंग अ वुमेन, आप उससे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. मैं इनकी इस घरों की जब लड़कियों से मिलती हूँ ना, दे विल से थिंग्स लाइक हाउ डू आई से that I do not like colors and I do not like jewelry, I do not like shopping, and they will wear it as a badge of honor कि I do not like girly stuff. So because आप देखो अगर मीडिया में भी यही दिखाया जाता है कि I was discussing this with one of my client the other day कि हमारी मूवीज़ में भी दिखाया जाता है कि अगर किसी लड़की को खास दिखाना है, राइट, कोई काम की दिखाना है उसको, तो उसको लड़कों जैसे कपड़े दिए जाते हैं, उसको टॉमबॉयज दिखाया जाएगा एंड शी विल से थिंग्स लाइक आई एम नॉट लाइक अदर गर्ल्स, आई एम नॉट लाइक अदर गर्ल्स. लाइक ट्वाइलाइट मूवी इज अ ग्रेट एग्जाम्पल, राइट? Any movies you can pick from the old time, they like the patriarchy influence, all these movies they were showing कि अगर कोई औरत किसी काम की है ना तो पहले तो वो औरत ही होना बंद कर देती है और सारी बेवकूफ़ लड़कियां, कैरेक्टरलेस लड़कियां, बिम्बोज जो कहते हैं जिनको दिखाने की कोशिश करी जाती है, वैम्प्स हो गए, उन सबको पिंक पहना दिया जाएगा, उन सबको पिंक कपड़े दे दिए जाएंगे, कलरफुल और ज्वेलरी उनको दिखा दी जाएगी. ये तो पगलियाँ होती हैं, ये देखो कैसे ये पहन के, ये तो ऐसी जो औरतें होती हैं ना जो अपने से टच में होती हैं उनको सीधा सीधा वहाँ पे क्रेजी पुट कर दिया जा रहा है, राइट? एंड दिखाया जा रहा है कि men will choose you when you disconnect from your femininity because then only you are of some use to us. These movies are made by immature men. You get it? So that is why for them this is the category, because they would need a woman to be disconnected with her femininity, who doesn't love diamonds, who doesn't love great clothes, perfumes and all that, ताकि वो इसे afford कर पाए. And whenever any woman loves those things, loves the womanly things, girly things, they're like, oh, that is the villain, that woman is the worst. Because वो उन्हें ट्रिगर करती है, दिखाती है कि बेटा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है एक वुमन को अफोर्ड करने के लिए. And of course they hate that. So it is their hate projected on that woman which is feminine, right? So इन घरों की लड़कियाँ मुझे ऐसी मिलती हैं, they will have this dialogue going on and that I'm not like other girls and they will not be a girl's girl, if you know the term what that means, कि लड़कियों का support करना. I remember
आई यूज टू हैव दिस सो कॉल्ड फ्रेंड इन माई स्कूल. जैसे ही लड़के पास से गुजरते थे उसका बिहेवियर एकदम चेंज हो जाता था. शी यूज टू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश. बैक देन हमारे केवीज से मैं पढ़ी हुई हूँ, वहाँ पे इंग्लिश बोलना बहुत स्टेटस सिंबल होता था. आज के टाइम पे इट्स जस्ट अ लैंग्वेज. सो she will start speaking very differently, she will start treating me very differently, she will touch her hair a little too much, and she will try to dress up sexy or something, when guys are around and all. So I used to get that this is a courtship thing, I get that. But एक आपने सामने जो आपकी जो दोस्त, आप उसको दोस्त बोल रहे हो, उसको नीचे गिरा देना, that's how you know this woman centers men so much that she is not even good enough for our clan. एक आदमी के लिए भी अगर कोई ऐसा आदमी है जो आदमियों को धोखा देता रहता है औरत पाने के लिए, उसको आदमियों के क्लैन में भी नहीं घुसने दिया जाएगा आफ्टर सम टाइम. कि भाई तू ऐसा करना, तू लड़कियों के बीच ही रहे. दे हैव दिस सेइंग राइट दैट ब्रदर्स बिफोर मदर्स, नो आई फॉरगॉट. सो आई मीन मतलब कुल मिला के मतलब ब्रो गैंग्स कम्स बिफोर देयर पार्टनर्स, राइट. सिमिलरली ये भी है कि आपकी जो ये फीमेल फ्रेंड्स हैं, दे कम बिफोर योर पार्टनर, राइट. सो when it comes to courtship, of course after your marriage your partner becomes your very important person in your life. जैसे for example there is this client I had, उसके घर में उसकी जो वाइफ है बार बार अपनी मम्मी से हर चीज़ का गाइडेंस लेती है, राइट. मतलब छोटी छोटी बात का भी. मैं नहीं कह रही हूँ कि कुछ दादी माँ के नुस्खे जो सिर्फ मम्मी दे सकती है वो भी अपने हस्बैंड से ले. ऑफ कोर्स उसके लिए तो उसे माँ के पास जाना ही पड़ेगा, बट हर चीज़ घर की माँ को रिपोर्ट करना, माँ को अथॉरिटी रखना. आप जब आपकी शादी हो गई है, यू शुड एक्सेप्ट द हस्बैंड्स लीडरशिप. अगर आपको हस्बैंड की लीडरशिप अच्छी नहीं लगती तो आपने शादी क्यों करी, और करने के बाद नहीं अच्छी लगती तो डिवोर्स कर दो, कोई बात नहीं. बट किसी मर्द के साथ रहना और उसकी लीडरशिप को शिट बोलना वो ठीक नहीं है, राइट. द सेम वे वुमेन हैज़ द राइट टू हैव love in their marriage, men have the right to have respect in their marriage, right. Respect is man's everyday food. They need to have it in order to kind of exist with peace. अगर एक मर्द की शादी के बाद इज्जत नहीं है, उसकी बीवी उसकी इज्जत नहीं करती है, इससे बड़ा कोई और ट्रॉमा नहीं है उनके लिए. वैसे ही सेम एक औरत को जब उसका हस्बैंड शादी के बाद उसकी औरत को नहीं प्यार करता है, इससे बड़ी प्रॉब्लम उसके लिए नहीं. चाहे वो दुनिया को कितनी सुंदर दिखे और दुनिया के लोग उसके पीछे लाइन लगा के खड़े रहें, बट उसका हस्बैंड उसको प्यार नहीं करता है, दैट्स द वर्स्ट ट्रेजेडी दैट कैन हैपन. ओके, सो these women will be like, I'm not like other girls, I don't like colors, I don't like shopping, I don't like jewelry, I don't like girly stuff. They will say things like that because what? They used to like girly stuff. They were told girly stuff is for stupid and crazy girls. Those people like girly stuff. इनको low maintenance बनाया जाता है, and they will start having a lot of pride in low maintenance. For a long time I also had pride in saying things like कि मैं तो 15 मिनट में रेडी हो जाती हूँ, मैं तो मुझे तो शॉपिंग नहीं पसंद है, मैं तो मतलब गिन चुन के ही सामान लेती हूँ, मैं तो एक चीज़ लेती हूँ मैं उसको बहुत लंबा चलाती हूँ, और मुझे ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं तो इतने में चला लूँगी. पता नहीं ये लड़कियाँ अपने आदमियों को कितनी टेंशन देती हैं. देयर वॉज दिस फीमेल कोच मीना इरफान, आई लव हर वर्क. सो शी सेज दैट माई हस्बैंड selected me out of dating, dated me actually because I used to be the most challenging woman in his life. Not in a bad way, but in a good way, because I liked everything expensive. And he knew he had to step the fuck up every single time to be with me. So he knew this woman is gonna cause my growth. Because इसके स्टैंडर्ड बड़े ऊंचे हैं और बढ़ते ही जाते हैं. अगर कोई ऐसी औरत मिल जाए जो लो मेंटेनेंस है, बंदा तो कुछ करे ही नहीं लाइफ में. औरतें आदमियों का सबसे बड़ा मोटिवेशन है, सबसे बड़ा, सिंस फॉरएवर. That's why we say women were the first gods. We made things happen. That's how, right? So these women come from this kind of household. They'll have these kind of things. They'll wear usually tomboyish clothes. They will have a ick with girly stuff. They'll be like, this too girly, that's too pink, that's not for me. And I'm not like other girls. And लड़के ज़्यादा अच्छे दोस्त होते हैं, लड़कियों पे तो मैं विश्वास ही नहीं कर सकती. That's how you know this woman has a feminine wound. Okay? क्योंकि आपका जब फेमिनिन से नहीं बनेगा तो फेमिनिन से कैसे बनेगा, राइट. आपका जिस कॉन्सेप्ट से नहीं हो रहा है आपका अच्छा रिलेशनशिप, राइट, आप उस कॉन्सेप्ट
को एम्बॉडी करने वाली जो औरतें हैं उनसे भी ऑफकोर्स आपका अच्छा रिलेशनशिप नहीं बनेगा। मेरी मोस्टली क्लाइंट्स जिनकी भी फेमिनिन काउंसलिंग पूरी हुई है, जिन भी औरतों ने अपनी काउंसलिंग करवाई है, अब उनकी इतनी अच्छी सखी सहेलियां बनने लग गई हैं जो कि पहले नहीं थी। पहले सिर्फ मर्द ही दोस्त हो पाते थे। वाई? बिकॉज दे वर सो डिस्कनेक्टेड फ्रॉम देयर फेमिनिटी कि मैस्कुलिन विल बी देयर मोर ऑफ एलाई, लाइक उनसे ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगी। दे विल बिकम वन ऑफ द ब्रोज, कि डूड मैं बाकी लड़कियों की जैसे एक्टिंग नहीं कर सकती हूँ फ्रैजाइल और सेंसिटिव होने की। डूड मैं तो बास्केटबॉल खेलती हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो इतना बड़ा बड़ा वेट लिफ्ट करती हूँ। लाइक दिस इज हाउ दे टॉक, ओके, एंड दे डू नॉट अंडरस्टैंड देयर इज द प्रॉब्लम। ओके, सो अब हो गई ये बात कि चाइल्डहुड ट्रॉमा इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू हैव अ गुड लव लाइफ। बिकॉज अगर आप ये नहीं करोगे तो आप तो पहले वुमेनहुड में ढंग से नहीं आ पाओगे। जो औरत वुमेनहुड में ढंग से नहीं आ पाती है वो मर्द नहीं पुल कर पाएगी अपने मैग्नेटिज्म से। पुल करने का मतलब ये नहीं है कि जाके डेटिंग एप्स पे घुस जाना और लड़के ढूंढना शुरू कर देना और पीछे लग जाना, लड़कों के नंबर उनका लेना, राइट, उनका फॉलो करना, स्टॉक करना। नहीं नहीं नहीं, वीमेन डोंट डू दैट, ओके, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। पुलिंग बाय योर ओन मैग्नेटिज्म। सो वी ऑलवेज पुल आर परफेक्ट मैच कॉम्प्लीमेंट्री। अगर हम देखें इसको, क्या मतलब है मेरा इसका, ये अगर जीरो है, दिस इज जीरो पोलैरिटी, दिस इज unisex, asexual, I don't know what, like it's zero, okay? This is feminine and this is masculine. अगर आप इतनी सी फेमिनिन हो तो आपको इतना सा ही मर्दाना बंदा मिलेगा। इतनी सी फेमिनिन हो के आप इतना मर्दाना बंदा मांग रही हो, आप ही गलत मांग रही हो। These women know which will be commenting on these videos like, but where are those men? Where did you get them? I got them from Amazon. The fuck? I got them because I worked the fuck up on myself, right? ये मैंने एक मीम भी बनाया था इस बारे पे कि ये मर्दाना लड़के कहाँ हैं। हम लाइक अपनी फेमिनिटी हील करके आ बहन तब पूछना तू, क्योंकि व्हाई वुड दे कम टू यू? यू आर नॉट इवन वुमेनली। तुझे मर्दाना चाहिए, उनको कोई औरत जैसी चाहिए यार। तू औरत जैसी ही नहीं है तो क्या करेंगे वो तेरे पास आके? दे डोंट वांट टू प्ले बास्केटबॉल विद यू। Why would they come? They don't need their car repaired or some weight lifted. Sorry, they can do that themselves, right? Because they are men, right? You will get these lollipop men, which I call like, this thin, and people which are only good with maximum, I don't know what, technology, no handy skills, they can't do any of the woodwork, plumbing work, nothing, उनको कुछ नहीं आता है, right? These men, they will be getting their manicure, pedicure and sunscreen, tan ना हो जाऊं कहीं मैं धूप में। ऑफ कोर्स इसका तुम परफेक्ट मैच हो। अगर तुम इतनी मर्दाना हो, तुम इस बंदे का परफेक्ट मैच हो, क्योंकि ये तो धूप में जा नहीं पाएगा, तुम्हें भेजेगा। और तुम इतनी तो रफ हो ना, तुम बताती हो कि तुम कितने रफ एंड टफ हो, तुम बाकी लड़कियों जैसी नहीं हो, गर्ली नहीं हो। सो गो गो गेट हिम एन आइसक्रीम, get him an ice cream, buy him skincare. Right there you got your man, right? That bow you attach. राइट, दैट इज योर मैन। नेम सेक के लिए आदमी मिला है, राइट? क्योंकि आपकी फेमिनिटी कम है, जितना आप जीरो के पास हो उतना ही यहीं पे उतना ही कॉम्प्लीमेंट्री मैच आपको मिल जाएगा। अगर आप अच्छे से अपनी फेमिनिटी में डीप इनटू योर फेमिनिटी हो, आपको औरत और औरताना चीजों से कोई दिक्कत नहीं बची है, यू लव देम, राइट, यू एम्बॉडी देम, देन you will get a man who would love a woman like that. Polarity is always there. आप 20% फेमिनिन हो, 20% मैस्कुलिन बनना मिल जाएगा। आपको चाहिए 100% तो पहले 100% फेमिनिन बनो। दैट इज द वर्क यू नीड टू डू। सो चाइल्डहुड ट्रॉमा रिलीज करने के बाद next phase that I make people work is first of all self love. You remember in the previous video also I have talked about कि प्यार के लिए self love की सबसे ज़्यादा पहले ज़रूरत होती है, क्योंकि self love के बिना love नहीं exist करता है। self love is the foundational relationship you have with yourself. जिसका खुद से कोई रिश्ता नहीं, उसका किसी से कोई रिश्ता सच्चा नहीं है। Okay, so next is this self love. Once you have done like the work of self love on yourself, then what you would need is to forgive all those people that have done you wrong. A lot of us will go into relationships and then be like, यार मुझे ना आदमियों से ही बहुत चिढ़ है। अब ये आदमी कर तो रहा है मेरे को परस्यू, बट ना ये मर्द साले साले ऐसे ही होते हैं, क्योंकि आपने अभी तक पुराना बंदे का ट्रॉमा तो रिलीज किया बट उसको पूरी तरीके से माफ नहीं किया। I've had many clients, they will do wonderful release work on their trauma, but then when it comes to forgiving people, they're like, अंकिता फॉरगिव तो मैं नहीं करूंगी उसे। Then I'm like, फिर तो वो तुम्हारे साथ जिंदगी भर जाएगा। सोच के देखो, आपके साथ कोई ट्रेजेडी हुई, चलो मानो 1 महीना तक आपके साथ ट्रेजेडी होती रही,
1 महीना ट्रेजेडी हुई थी और उसको आपने 2 साल खींच दिया, याद कर करके दिमाग में प्ले कर करके, रिप्ले 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 रिप्ले। अब वो ट्रेजेडी 2 साल 2 महीने की 2 साल 1 महीने की हो गई, और इसमें उस पर्सन का रोल सिर्फ वो 1 महीने के लिए था, 2 साल ये तुमने उस ट्रेजेडी को अपनी लाइफ में खींचा है। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू डोंट फॉरगिव, you keep suffering. When you have carrying this suffering in your head, this also has its vibrations, right? It's gonna affect your overall aura, overall magnetism. You will attract a person who also has not been able to let go of their ex. Then you'll be like, मुझे ऐसा बंदा क्यों मिला? तुम ऐसी बंदी क्यों हो जो आज तक अपना एक्स को लेट गो नहीं कर पाई हो? That's why you got a man like that. You get it? So this is very important that we forgive our past. नेक्स्ट स्टेप इज दैट हैविंग प्रॉपर बाउंड्रीज. हम लोग को स्टैंडर्ड्स तो सिखा देते हैं बट बाउंड्री नहीं सिखाते, क्योंकि बहुत सारे लड़के जो आपको मिलने वाले हैं दे आर गोना बी अनसेफ, राइट? वी आर ऑन अर्थ. यहाँ पे सब लोग सीखने आते हैं. सीखने कौन लोग आते हैं? जिनको पहले से कुछ नहीं आता है, राइट? सो ऑफकोर्स अनसेफ लोगों की, फक्ड अप लोगों की अर्थ पे पॉपुलेशन हमेशा ज़्यादा होने वाली, बिकॉज अर्थ इज ए स्कूल. स्कूल में वो लोग दाखिला नहीं लेते जो पहले से टॉपर है, वो दाखिला लेते हैं जिनको कुछ नहीं आता है, क्योंकि वो सीखने आए हैं, राइट? सो इससे हताश होने की जरूरत नहीं है कि अंकिता मोस्टली आदमी तो खराब ही है. तुम्हें 100 तो लोग शादी नहीं करनी ना, एक से करनी है ना. एक मिल जाएगा और बहुत आराम से मिल जाएगा, राइट? सो देन कम्स नेक्स्ट, एज आई सेड, दिस बाउंड्री मेकिंग, अंडरस्टैंडिंग कि हाउ टू पुट अ बाउंड्री. कल ही मुझसे एक मेरी क्लाइंट डिस्कस कर रही थी कि ऐसे करते हैं जो लड़के, इन पे बाउंड्री कैसे लगाऊं. ये आना चाहिए. अगर आपको ये नहीं आता, आई ऑलवेज से दिस कि इफ यू आर अ वुमन विच डज नॉट हैव द बॉल्स टू से नो टू द रॉन्ग मैन, यू विल नेवर रीच योर राइट मैन. क्योंकि आप रॉन्ग मैन को हटाओगे 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 हटाओगे, हटाते जाओगे 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 जाओगे, देन यू विल इवेंचुअली मीट योर स्टैंडर्ड. देयर इज दिस वुमन दैट इंस्पायर्स मी अ लॉट, द मदर ऑफ द गोल्ड डिगर्स, शेरा 7. ओके, गोल्ड डिगर पे मैं एक और वीडियो बनाना चाहती हूँ, विच आई विल डू लेटर. बट या, शेरा 7 सेज दैट मैंने बहुत ही पहले रियलाइज कर लिया था कि मुझे सिर्फ वही आदमी को मैं अपना मर्द बोल सकूंगी जो मेरे पूरा एक्सपेंस मेरा पे करेगा जब तक मैं उसके साथ हूँ. सारा एक्सपेंस, मेरे को कुछ खरीदना है उसके क्रेडिट कार्ड से, सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ, मेरा पैसा सेफ रहेगा. बिकॉज औरत का सेफ रहना बहुत ज़रूरी है टू फ्लरिश. औरत कभी प्यार नहीं कर सकती जब तक वो प्यार में सेफ नहीं महसूस करती है. ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, राइट? सो शी सेड कि मैं सिर्फ ऐसे बंदे से प्यार करूंगी जो मेरे बिल्स पे करेगा, सारे के सारे. माई ऑल एक्सपेंसेस माई हस्बैंड कवर्स. दैट गाय ओनली आई एम गोना कॉल माई हस्बैंड. मुझसे कम कोई भी आई एम नॉट गोना कॉल माई हस्बैंड. एंड जब उसने ये बोला उस टाइम के लिए, बिकॉज एज ऑफ नाउ शी इज प्रीटी ओल्ड, आई थिंक शी इज 40 समथिंग. तो जब उसने ये बोला था उस टाइम पे, व्हेन शी वाज मे बी आई डोंट नो 20s और व्हाटएवर, सब लोग वर लाइक वो who will pay anything for you. like आज के टाइम पे कोई भी ऐसे नहीं करता है, राइट? इवन आज जाके ये फेमिनिज्म ऐसा आया है कि पीपल आर डिमांडिंग दैट यू नीड टू पे माई बिल्स, यू नीड टू बी इन योर प्रोवाइडर माइंडसेट, अदरवाइज आई डोंट वांट यू इन थिंग्स लाइक दैट. बट व्हेन शी डिड, nobody was doing. And you know what she said? I rejected hundreds of guys, चाहे कितने भी अच्छे थे, पर अगर if they are not meeting my standard, I'll put a boundary. I'll be like, okay then you're out, it's done, right? So इतना करने के बाद, because she had the balls to reject the guys. If you are such a desperate girl and your desperation comes from your childhood trauma, जिसके बारे में हमने बात करी, इसीलिए मैंने बोला कि childhood trauma सबसे पहले निकालना है. क्योंकि जब आपने अपनी माँ को desperate देखा है पूरी जिंदगी ना, एक गिफ्ट नहीं मिला उनको ना, पापा ने कुछ भी उनके लिए पिक नहीं किया, बस बोल दिया कि पैसा तो तुम्हारा ही है ना, तुम ही मैनेज करती हो घर, उसी में से कुछ ले लेना अपने लिए. ही डजंट नो आपने कुछ उसे गिफ्ट नहीं दिया है, वो अपने लिए ले रही है आपके पैसे से. दैट डजंट काउंट. दैट्स लाइक आपको प्यार करने का कुछ जहमत आपने नहीं किया, राइट? उसको, वो खुद को प्यार कर रही है आपके पैसे से. दैट इज वेरी डिफरेंट. ओके, शी नीड्स हर हस्बैंड टू थिंक ऑफ हर कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, तभी मैंने ये पर्पल टॉप देखा और मैं तुम्हारे लिए लेके आई, तुम पे बहुत अच्छा लगेगा. This is all she wanted. She fucking didn't get anything like that, right? So when she said something like this and rejected hundreds of men, she said eventually she definitely met her man, which was like, I am more than comfortable to do that for you, baby. I will do it for you. And now she's there with that man, right? And she's like, at any time he stops affording me, I'm out. It's my rule is very simple, right? So this tells us कि मैं ये अबंडेंस में भी मैंने एक वीडियो बनाया कि अबंडेंस रिक्वायर्स योर एक्सपेंशन. जब आप कम को नहीं ये वीडियो था
लेटिंग गो ऑफ पॉवर्टी वाला, फिजिकल वेज ऑफ लेटिंग गो ऑफ पॉवर्टी, समथिंग लाइक दैट, पॉवर्टी को लेट गो करने वाले वीडियो में मैंने बोला है कि जब तक आप जैसे फटे हुए कपड़े पहन रहे हो, राइट, एकदम घिसा हुआ रुमाल यूज कर रहे हो, या फिर आप ऐसा कुछ यूज कर रहे हो चीजें जो पूरी फेड हो चुकी है, यू आर टेलिंग योर सबकॉन्शियस माइंड दैट आई एम ओके विथ पॉवर्टी। बिकॉज टूटी फटी चीजें कौन यूज करता है? पूरा इंसान यूज करता है। दैट इज ऑलरेडी लाइक सबकॉन्शियस को पता है ये। और जब आप वो चीजें यूज कर रहे हो तो आप सबकॉन्शियस को बोल रहे हो कि मैं ओके हूँ ऐसी फटी हुई चीजों के साथ, आई एम ओके टू लिव विथ थिंग्स लाइक दैट। देन सबकॉन्शियस लाइक ऑल राइट, नोटेड। When you are entertaining poverty on one hand, you cannot call for abundance. So these women will be telling कि मर्द जात इतनी खराब है। इनकी चैट बॉक्स देखना एक बार आप, they are still talking to that मर्द जात, right? Which do not give a fuck about them, which do not take care of them, which do not take them out, which do not buy them stuff. They are talking to these men and then इंस्टाग्राम पे आके ये चूड़ियां तोड़ रही हैं, ये रोना कर रही हैं अपना कि अरे आदमी तो बड़े खराब होते हैं। बहन, बात तो तुम ही कर रही हो इनसे, अभी तक तुम बात कर रही हो, अभी तक वो बंदा ब्लॉक नहीं, आई कैन टेल यू, आई नो दैट, राइट। ये तुम्हारी यही हरकतें हैं, इसकी वजह से यूनिवर्स को तो उससे तो कुछ नहीं छुपाया ना, वो सब देख रहा है तुम्हारा हरकतें, तुम ये करती हो, राइट। और फिर इसके बाद रोती हो आके कि बंदा क्यों नहीं मिल रहा, तुम्हारी ही वजह से नहीं मिल रहा है। You do not have the fucking balls to let go of a man which is not fitting in your standards. Why the fuck are you entertaining him? In a hope कि कल को वो बंदा बन जाएगा जो तुम्हें चाहिए। You are dating for potential, like a loser, as any loser does, dating for potential, right? Then तुम अपनी मिजरी की खुद ही क्रिएटर हो, right? So this is how when you don't let go of these things, you're telling universe, I am actually okay with this fucked up men, मैं इनके साथ खेल लूंगी, चिंता मत करो, आपको नया लाने की जरूरत ही नहीं, मैं पहले इनसे तो खेल लूँ। एंड दीज पीपल विल बी टेलिंग मी कि मुझे अच्छा मर्द क्यों नहीं मिलता। अंकिता, तुम बुरे के साथ खेलना बंद तो करो यार पहले। अबंडेंस वर्क्स इन द सेम वे ऑलवेज। पहले बुरे को हटाया जाता है ताकि अच्छे के लिए जगह बनती है, फिर अच्छा आता है। देर लाइक नहीं, ऐसा कुछ ट्रिक बताओ कि बुरों को लेट गो भी ना करना पड़े, उतना भी जहमत ना करना पड़े, अच्छा आ जाए, फिर बुरे को लात मार देंगे। हैं, बढ़िया है ना? हाँ, ये कर। हाँ, पर यूनिवर्स ऐसे चलता नहीं है। तुम्हारे दिल में ये सब आते रहेंगे ख्याल, पर ये कभी होने नहीं वाला है, तुम बैठी रहो, कुछ होने नहीं वाला है, क्योंकि ऐसे, राइट, you do not have the courage to let go of the old, new will never find you. I can give it to you written. ठीक है, तो ये होगी बात एक। अब बात करते हैं कि इसके बाद और किस चीज़ की ज़रूरत है। बाउंड्रीज के बाद पहले बात, आपको इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है, राइट। हाइपर इंडिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट की बात कर रही हूँ मैं। हमारे कल्चर में औरतों को, जैसे देयर वाज दिस क्लाइंट ऑफ माइन, मैंने उसको बोला कि यू नीड टू मूव आउट ऑफ योर पेरेंट्स होम, यार इट्स वेरी टॉक्सिक देयर। पेरेंट्स रिप्लाइड सेइंग दैट कि हमारे घर की लड़कियां मूव आउट नहीं करती हैं, हमारे घर की लड़कियां सीधे ससुराल जाती हैं। कितना अच्छा सिस्टम है ना ये, कि पासिंग द पार्सल खेला जा रहा है। यहाँ पे एक जगह से इसके रूल्स के साथ लड़की को रखा जा रहा है, प्रिंसेस ट्रीटमेंट तो दिया नहीं जा रहा है, उसकी इज्जत तो करी नहीं जा रही है, और एक जगह से दूसरी जगह पे उसको भेज दिया जा रहा है, वहां पे भी उसकी इज्जत नहीं की जाएगी, वहां पे तो उल्टा और वो पराई बोली जाएगी, राइट। और उसकी वहां पे भी इज्जत नहीं होगी, उसको वहां के रूल के हिसाब से रहना पड़ेगा। औरत नहीं होगी, कमोडिटी होगी, एक जगह से दूसरी जगह बस ऐसे भेज दो आप अपने हिसाब से, राइट। इसके बीच में, टू एवरी वुमन लिसनिंग टू दिस, यू नीड टू हैव योर होम। दिस इज माई होम। यहाँ पे जैसा मैं बोलती हूँ वैसा होता है, जैसा मैं खाना चाहती हूँ यहाँ वैसा खाया जाता है, मेरे हिसाब से यहाँ पे लाइटें जलती हैं, बंद होती हैं, मेरे हिसाब से यहाँ फर्नीचर अरेंज होता है। एवरी फकिंग थिंग इज अकॉर्डिंग टू मी। दिस इज माई होम। ना ये मेरा मायका है, ना ये मेरा ससुराल है, और ये घर मेरे पास हमेशा होने वाला है। अभी के लिए ये रेंटल है, बट कुछ टाइम में अपना खुद का भी हो जाएगा। पर अपना घर बहुत ज़रूरी है। मैं एक पोस्ट बनाने वाली हूँ कि ऑल द थिंग्स वुमेन नीड टू डू बिफोर गेटिंग इनटू डेटिंग। So I'll put in post form also, so for you guys to save and stuff, right? But yeah, video तो मैं already अभी बना ही रही हूँ, right? So you need to become that independent. अगर आप डिपेंडेंट थी पहले पापा पे और अब आगे अपने हस्बैंड पे, कल को अपने बेटे पे, आप अपनी सही तरीके से जी ही नहीं पाई हैं अभी तक जिंदगी, अगर आप ऐसे डिपेंडेंट रही हैं, राइट। आप पापा से पूछ के खर्चा करती थी, अब हस्बैंड से पूछ के करती है, फिर बेटों से पूछ के, अरे यार तुम तो अपने पावर में ही नहीं आई। यू नीड टू कम इन योर पावर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो next session is called as adulting, that I give in my counseling session after boundaries, making you an independent woman. Okay, then after that comes the polarity, the most important part. As I told you, right, you have to work on your femininity,
राइट? हम लोग जितना डिस्कनेक्ट कर दिए जाते हैं अपनी फेमिनिटी से, बहुत ही ज़रूरी होती है ये जर्नी टू कम बैक टू आवर नेचर, समथिंग दैट used to come very naturally to us when we were kids, but we have so forgotten it now, when for years we were told femininity is bad, feminine is bad, being feminine is being crazy, right? Things like that. So femininity comes the next session in my counseling, and इसके बाद मैं देती हूँ लोगों को love counseling, in which I teach them how exactly a woman need to date and everything. Okay, so now I hope by now you have understood these are the steps required for you to be open for love. This is what I mean coming into womanhood. एक वो wounded बच्ची उस घर से लेके womanhood में आने में इतने steps लगते हैं, इसी हिसाब से मैंने अपनी काउंसलिंग प्रोसेस बनाई है. This exactly with steps that I told you are steps of my counseling process. You can even check it on my page. And if you are someone who wants your love life to work as a woman and you come from a traumatic home, even if you don't, rest of the work definitely you need to do, because a lot of my clients, not a lot, most of my clients, whoever has done that, all of my clients whoever, because a lot and most is kind of same, all of my clients which have done that work, now they're able to sail through easily when it comes to dating, and some of them have even found the right guy for them. So if you want to improve your love life, then this is the video for you. Hope this taught you what you needed to know.